And maybe a little bit, but just for fun's sake. I really can't trouble anybody else. That's not my nature. The top payer in our chemical engineering branch was Hindustan Lever at about 6 or 7,000 rupees a month. I think opportunities का इतना issue नहीं है आज की डेट में भी. I think opportunities are there. People need to apply themselves. कभी कभी special occasion friends वगैरह बैठते थे तो छोले भटूरे भी बनाए हुए हैं, गुलाब जामुन भी बनाए हुए हैं. Welcome to Road to Financial Freedom. We are here on popular request with another episode to discuss what happened in Dad's life further, what happened with IIT. Everyone's been asking already, aapne kari ya nahi senior year mein? Everyone wants to know a lot more from their favorite research analysts. So here we are today. Thank you so much for this lovely engagement that we are having. I hope people are taking motivation out of these lessons of my life and they will apply it in their own life and be on the road to financial freedom. So the first question that we've been receiving a lot of queries about, did you bully people when you got in the second year? You were mentioning all the ragging stories that you had. So I think by the time I graduated in 1991, there were several incidents over the country which had happened in this ragging field, and there were stricter regulations around it. So by the time I graduated, I think ragging was almost extinct. But yes, I mean also my nature is not of such that I should bother others. Just a little bit also you didn't do. And maybe a little bit, but just for fun's sake, I mean, I really can't trouble anybody else. So that's not my nature. So when you graduated IIT, did you sit for placements? Did companies come? What was the scenario in these top universities of the world? So there's a great placement cell at IIT. I can tell you from my time, I don't know what is available today. But in those days, many companies, mostly MNC companies, like for instance, Hindustan Lever, Colgate, Ranbaxy, these companies used to come for placement, along with overseas corporates like Schlumberger, IBM, and those jobs were available. So, I mean, it was a fierce competition because there were select few companies only that would be, everybody's choice. So everybody wanted those top 2, 3, 4 names. So it was a tough competition, and I remember having interviewed for several of them. I could get through only in Colgate Palmolive. So they offered me a job at their Aurangabad plant for a plant engineer, and I think the salary was 2,600 rupees per month. और आपने क्यों नहीं चूज किया या करा चूज to join them? What was the reasoning? What was your mindset? So I did not want to go to Aurangabad. I think I had also applied for master's program at various universities, and I got admission at 2 universities, University of Maryland and University of Virginia. And one of them, University of Maryland, also offered me a tuition waiver. So the option for me was to go and study more and not have to pay for it, or to go to Aurangabad and join a job at 2,600 rupees a month, which did not sound appealing even then. So just to give you a reference, the top payer in our chemical engineering branch was Hindustan Lever at about 6 or 7,000 rupees a month, and across the batch it was, I think, Schlumberger, which offered 25,000 rupees for those who would go with them offshore. From that perspective, I mean, this was really, really low, and that did not excite me, so I refused that offer. But wait. So why did you apply to the US in the first place? I think when you are a youngster, तो आपको ना कुछ एक charm होता है. First time you want to go abroad, और आपको see आजकल के youngsters की बहुत different situation है. In many families, middle class or upper class families, youngsters have already experienced what is a foreign country. They have traveled extensively, so there's nothing new left for them to go explore while studying. Whereas for us, I had never sat in a international aircraft till then. So just the
दस द आइडिया दैट कि भाई बाहर कहीं जाके रहेंगे और एक न्यू एक कंट्री एक्सप्लोर होगी और आपको एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा एंड इट इज़ ऑलरेडी पेड फॉर, तो वो एक बहुत एक एक्साइटमेंट थी उस बात की। इस बात का ज़्यादा मेरे ख्याल से सोच नहीं थी कि भाई बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करके क्या होगा, उसके बारे में ज़्यादा सोच नहीं थी उस समय। आजकल बच्चे, बट इनफैक्ट मुझे लगता है कि यंगस्टर्स ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी नॉलेजेबल, तो लोग अपने बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। उस समय ना इतने ऑप्शंस हुआ करते थे, ना लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे इन बारे में, जस्ट गो विद द फ्लो वाली कहानी हो जाती थी कई बार। तो आउट ऑफ आवर बैच ऑफ मे बी 250-300 जो बच्चे थे आईआईटी में, आईआईटी दिल्ली में, मेरे ख्याल से 100-150 लोग बाहर जा रहे थे उस समय। और एक थोड़ी सी भीड़ चाल की जैसे भी हो जाता है कि भाई सब जा रहे हैं बाहर तो आप भी जा रहे हो बाहर। तो इस तरह से कुछ मतलब ऐसे कोई डिसाइसिव कॉलिंग नहीं थी कि भाई मुझे बाहर जाना है, इस वजह से जाना है। इट वॉज जस्ट दैट वॉज अ ट्रेंड दैट इन दोज डेज वेरी फ्यू पीपल स्टेड बैक, और उनमें से जो लोग नहीं गए वो या तो आईएएस की तैयारी कर रहे थे या वो कैट का एग्ज़ाम दे रहे थे आईएम के लिए, वो स्पेसिफिक कुछ नंबर्स थे। बट काफ़ी लोग बाहर गए पढ़ने अपने मास्टर्स और पीएचडी करने के लिए। But didn't you choose IIT Delhi because it was close to your house, etc.? तो इतना बड़ा रिस्क किया, it got 3,000 miles away from your house, you want to go and... आई थिंक एट डिफरेंट एज आपको एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आउटलुक हो जाती है। तो जब आप 17 साल के थे, जब कॉलेज में जाने वाले थे, देयर वाज मोर अटैचमेंट टू द हाउस। और जब आप 21 साल के निकले वहाँ से, तो ऑलरेडी आपने 3-4 साल हॉस्टल लाइफ भी देख ली। यू वांट टू एक्सप्लोर मोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि भाई यू वांट टू एक्सपैंड योर होराइजन्स आप। और एक मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है बच्चों को या यंगस्टर्स को घर से दूर रहना कुछ टाइम के लिए। आई थिंक वो जो एक एक्सपीरियंस मिलता है, जो खुद रहने की और खुद सब कुछ मैनेज करने का एक सीख मिलती है कि आप अपने खाने को भी मैनेज करना है आपको अपने कपड़े भी मैनेज करने हैं, आपको ट्रांसपोर्ट भी मैनेज करनी है, जो कि अगर आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं तो काफ़ी कुछ आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हो ही जाएगा। आपको अपने बिल्स भी पे करने हैं, आपको क्रेडिट कार्ड्स का भी ध्यान रखना है, आपको अपनी वीज़ा स्टेटस और इमिग्रेशन स्टेटस और 10 तरीके की चीज़ों का आपको वहाँ ध्यान रखना है। तो एक तरह से बहुत इंडिपेंडेंस आपको मिलती है और उसके साथ साथ एक हाइटेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिविंग योर लाइफ, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके बच्चे आपके साथ रह रहे हैं और कॉलेज जा रहे हैं, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि उनको चाहे बराबर वाले घर में उनको रेंट पर रहना पड़े 2-4 साल तो अच्छा है, बिकॉज उसी से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर चलाने की एक सीख मिल सकती है उसके अंदर। सो लेट अस नो इफ़ यू लिव्ड आउट ऑफ योर हाउस, और आपका क्या एक्सपीरियंस है घर से बाहर दूर रहने का, और क्या आपको लगता है कि सब बच्चों को, यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को आफ्टर दे गो टू कॉलेज घर से थोड़े दिन दूर ज़रूर रहना चाहिए, उससे क्या सीखने को मिलता है? तो जब आप गए इंडिया से यूएस, what were the differences did you feel? And it's different, everything is different, it's a very like commercial place. देखो वो एक ज़माना डिफरेंट था। 1991 में मैं गया था और उस समय बहुत सारी चीज़ें इंडिया में नहीं मिलती थी, कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ऑब्वियसली वहाँ जाके एक आपको बहुत ज़्यादा एक शॉक वैल्यू होती है कि आप यू आर लुकिंग एट फैंसी कार्स ऑन द रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जस्ट यू आर एबल टू अफोर्ड ए लार्ज अपार्टमेंट। हमने जैसे 4 फ्रेंड्स से मिलके एक लार्ज 4 बेडरूम का अपार्टमेंट लिया था। तो वो जो एक चीज़ थी इंडिपेंडेंस थी, और वहाँ पर हर चीज़ के प्रोसेस बने हुए हैं। तो स्ट्रगल इतनी नहीं है कि कुछ कराने के लिए आपको टेलीफोन की कनेक्शन लगवानी है या आपको कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का लाइसेंस लेना है, ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो वो इतनी स्ट्रगल नहीं थी वहाँ पे, और इट वाज अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस अबाउट थिंग्स। वो ऑब्वियसली ओवर पीरियड ऑफ टाइम लास्ट 30 ईयर्स चेंज भी हुआ है यूएस में, कल्चरली भी बहुत चेंजेस हुए हैं वहाँ पर। बट उस समय इट वाज अ वेरी फ्री विलिंग काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट, और आपको जब स्कॉलरशिप भी मिली हुई है, ट्यूशन आपका
वेवर वो हुआ है, तो फिर भी हमें काम करना पड़ता था टू मेक श्योर कि भाई हमारे घर के खर्चे निकल जाएं. तो आई वॉज वर्किंग इन द लाइब्रेरी एट कॉलेज. आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन ए प्रोग्राम, उसका नाम था अपवर्ड बाउंड. तो वो एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वहाँ पर जो था उनको मैथ्स पढ़ाने का मुझे मौका मिला. तो हर सैटरडे 4 घंटे मैं मैथ्स पढ़ाता था बच्चों को. वो बच्चे 5th to 10th ग्रेड के बच्चे थे मोस्टली, और वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते थे और मुझे अच्छे पैसे मिलते थे उसमें. आई यूज़ टू गेट समवेयर क्लोज टू $35 पर आवर, और उससे मेरा बहुत खर्चा निकलता था. मतलब आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो पार्ट टाइम जॉब मिली. और यूनिवर्सिटी में भी मुझे रिसर्च असिस्टेंट अपने एक प्रोफेसर के नीचे बनने का मौका मिला, और वो भी मैंने किया. तो ये सब ऑड जॉब्स आपको वहाँ करने पड़ते हैं टू मेक श्योर कि भाई आपका खर्चा निकलता रहे. आपको इंडिया भी साल में अगर एक बार आना है, या और भी खर्चे करने हैं आपको, या कुछ आपको वहाँ पे घूमना फिरना भी है, कोई आप सेकेंड हैंड कार ख़रीदना चाहते हैं वहाँ पे, तो ये सब पॉसिबल है वहाँ पे. क्योंकि वहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है वो काफ़ी एक तरह से, मतलब इवन एट अ स्टूडेंट लेवल यू आर एबल टू अफोर्ड द स्मॉल लग्जरीज ऑफ लाइफ. तो वो उस समय इंडिया में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई एक 21 साल का जने को गाड़ी चलाने को मिल सकती है वहाँ पे. तो इस तरह से मतलब लाइफ वॉज ईजी ऑल्सो, बट इन अ वे डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि भाई आप की कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्कुल बंद थे. इंडिया से कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल था. उस समय कोई व्हाट्सएप ईमेल तो थी ही नहीं, और टेलीफोन यूज़ टू बी वेरी एक्सपेंसिव. 100 रुपये पर मिनट की कॉल होती थी उस समय, और वो भी बुक कराने के बाद. तो आप समझ सकते हैं कि 30-35 साल पहले 100 रुपये की क्या वैल्यू थी. पॉसिबली आज के 1000-1500 रुपये के बराबर समझ लीजिए पर मिनट. तो 1 मिनट हर हफ्ते में बात करने का प्लान था, और एक लिस्ट बना ली जाती थी पहले कि 1 मिनट बात करनी है मम्मी पापा से, और उसमें क्या क्या फटाफट बात करनी है. क्योंकि ना तो इतने पैसे हैं कि आप 5 मिनट बात कर सकें, और अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि भाई बार बार मिलने आ सकें या कुछ. तो दोज आर द रियल चैलेंजेस, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ सेल्फ लर्निंग and becoming more responsible in life. So I understand that it made you more responsible. You probably discovered your own self as well, what you like, what you don't like. ऐसे कोई key learnings आपको मिली हों कि मैं अगर बाहर नहीं जाता तो I would have probably not learned this in life. I think मुझे खाना बनाना आ गया जब मैं वहाँ गया. कभी कभी स्पेशल ओकेजन फ्रेंड्स वगैरह बैठते थे तो छोले भटूरे भी बनाए हुए हैं, गुलाब जामुन भी बनाए हुए हैं. आई मीन बहुत चीज़ें हम ट्राई करते थे, क्योंकि आई मीन वी हैड अ फुल किचन टू आवरसेल्व्स, एंड ईटिंग आउट वाज नॉट सो इजी. आई मीन महंगा तो था ही उस समय, एंड हमारा पॉकेट हमेशा टाइट रहती थी. तो बट ये था कि भाई बहुत ऑलमोस्ट हर हफ्ते देयर यूज्ड टू बी गेट टुगेदर्स. एंड द फनी पार्ट इज़ दैट फूड वाज नॉट सो एक्सपेंसिव देयर. तो आप कुछ भी आप सुपरमार्केट से ले आइए, बना लीजिए, कर लीजिए, आपके शायद $100 महीने से ज़्यादा उस समय खर्चा नहीं होता था. तो खाने पीने की कोई रोक नहीं थी, और मोस्टली जितने भी मेरे फ्रेंड्स गए सबका वजन बढ़ा वहाँ जाके. स्वीट्स एंड आइसक्रीम्स एंड अल्कोहल, एवरीथिंग इज़ सो चीप देयर. सो थोड़ा सा वो गड़बड़ भी हो जाती है, लेकिन you do learn a lot for sure. So what did you go to the US to study, and how many years was it? तो मैं US में करीबन 4.5 साल रहा. पहले 2 साल तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा था. मेरे एडवाइज़र जो थे 2 साल बाद मुझे कहने लगे कि अब तुम PhD कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही है. जब M.Tech ख़त्म होने वाली थी, तो मास्टर्स जब वो ख़त्म होने वाली थी, तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अगर मैं इस डायरेक्शन में कंटिन्यू करूँगा तो मैं 3 साल बाद एक ऐसी पोजीशन पे पहुँच जाऊँगा जहाँ पर आई विल बी अ PhD इन बायोटेक्नोलॉजी, बट मेरे लिए इंडिया आने की ऑप्शंस ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगी, क्योंकि इंडिया में उस बायोटेक फील्ड में जॉब्स वर्चुअली नॉन अवेलेबल थी. सिर्फ एक कंपनी रेनबैक्सी के नाम से थी, जो बाद में वो डाइवा ने ले ली. तो उस समय उसमें कुछ रिसर्च की अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, बट उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी. या फिर आप एकेडमिक्स में चले जाते और आप
कोई असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन जाओ यूएस में कहीं पे, तो वो मुझे कुछ इतना एक्साइटिंग फील्ड नहीं लग रहा था। तो मैंने जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया कि आई मेड ए डिसीजन टू स्विच माई लाइन्स फ्रॉम बायोटेक इनटू फाइनेंस। तो मैंने फिर MBA और मास्टर्स इन फाइनेंस करी उसी यूनिवर्सिटी से, और 4.5 साल बाद मैं फिर घर वापस आया। How did you decide to get into the stock market and do masters in finance? Because it would have been very difficult coming from an engineering background, competing with kids who are already aware of this world and you're quite new in it. So काफ़ी टफ था, क्योंकि जब मैं MBA क्लास में गया तो वहाँ पर 10-10 साल 5-5 साल की एक्सपीरियंस के बाद लोग आए हुए थे, और मेरे पास बिल्कुल कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैं तो स्ट्रेट इंजीनियरिंग स्टूडेंट से निकल के MBA प्रोग्राम में गया, तो आई स्ट्रगल्ड इन दैट, बट ओवर द 2.5 years दैट आई वाज देयर थोड़ा कुछ सीखा। पर स्टॉक मार्केट के बारे में, और एक मुझे याद है वहाँ पर एक स्टॉक ट्रैक चैम्पियनशिप हुई थी शायद 3rd सेमेस्टर में हमारे, उसमें आपको सिमुलेशन में आपको स्टॉक्स और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को आपको बनाना था। तो मैं और मेरा एक पार्टनर थे, टर्किश मेरे फ्रेंड थे, हमने वी एस दैट कंपटीशन, हम उसमें जीते थे। तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि हाँ कुछ नॉलेज स्टॉक मार्केट की है। और इंडियन स्टॉक मार्केट का तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था उस समय तक। ऑल्दो हर्षद मेहता का टाइम था वो 92-93, but I started my MBA in 93 and ended in 95। तो 95 में जब मैंने ख़त्म किया और जब मैं इंडिया आया तो मुझे तब तक कुछ भी नहीं पता था स्टॉक मार्केट के बारे में। उस समय ट्रांसफ़र डीड चलती थी कि कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे फिज़िकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है पिट के अंदर। तो वो सब मेरे को बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं था। और जब मैं यहाँ पर आया और मैंने एक दिन की ट्रेनिंग एक ब्रोकर के यहाँ पे जाके ली, मेरे फादर एक ब्रोकर को जानते थे, उन्होंने कहा कि इसको एक दिन के लिए अपने ऑफिस में बैठने दो जस्ट टू ऑब्ज़र्व कि क्या होता है। तो उसमें मैंने देखा कि वो ट्रेडिंग पिट से सारे स्टॉक कोड्स आए हुए थे, और वो ब्रोकर साहब जो थे वो अपने मन मर्जी से किसी को ट्रेड दे रहे थे कि 100 के 110 लगा दो इसको, या किसी ने 90 में बेचा तो इसको 80 में लगा दो। तो वो देख के मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ था कि मतलब मैं किस फील्ड में आ रहा हूँ और यहाँ पे तो इतनी गड़बड़ है। बट फॉर्चुनेटली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चेंज दैट एंटायर वे ऑफ वर्किंग। तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया उन्होंने, और उन्होंने प्रोफेशनल्स को इनवाइट किया न्यू मेंबरशिप के लिए, और ये जितना भी पहले गड़बड़ चल रही थी उसको बहुत ज़्यादा कट डाउन किया, एंड इट बिकेम वेरी ट्रांसपेरेंट टू द क्लाइंट, एंड ब्रोकरेजेस ऑल्सो क्रैश्ड along with that. So that was sort of the experience. I basically learned on the job. So as I set up the business, मैंने काम करते करते ही सीखा है। मुझे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, किसी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था। So, what were the differences in education system and like the top university from Delhi to University of Maryland? What kind of education systems did you think was different? तो मुझे लगता है कि जो सीरियसनेस ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर इवन एट IIT मैं कह सकता हूँ कि जिनको नहीं पढ़ना था वो क्लास में सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते थे, और एक सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं ना कि इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में एटलीस्ट उस समय, आज की डेट में मैं नहीं कह सकता, उस समय क्या था कि एक बच्चे सिर्फ एक अपना करिकुलम या अटेंडेंस पूरी करने आ रहे, एक अंदर से एक फीलिंग कि भाई मुझे कुछ सीखना है क्लास में आके और मुझे अटेंटिवली टीचर की बात सुननी है, वो बहुत कम देखने को मिलता था, बहुत कम परसेंटेज बच्चों में। वहाँ जब मैंने देखा कि कॉलेज में मास्टर्स लेवल पे और इवन अंडर ग्रेजुएट, क्योंकि मैं एज ए टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट मैं पढ़ाता था BTech बच्चों को वहाँ पे, तो आई सॉ कि बहुत ज़्यादा सीरियस अप्रोच है बच्चों की वहाँ पर। और एक मुझे इंसिडेंट याद है कि मैं 1 घंटे की मेरी क्लास थी, 25-30 बच्चे होंगे उसमें, तो मैंने 50 मिनट पे वो क्लास ख़त्म कर दी, क्योंकि मुझे कहीं 10 मिनट कुछ काम था। और किसी ने ऑब्जेक्शन कर दी कि मिस्टर जैन, हाउ कैन यू लीव द क्लास 10 minutes अर्ली।
because I have paid for 60 minutes of this class. So this is the kind of approach I saw कि भाई वहाँ पर क्योंकि बच्चों को इतनी फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं होती है और वो सब रात को पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, बर्गर्स फ्लिप करते हैं, तब जाके पैसे इकट्ठे करके अपनी ट्यूशन फीस देते हैं. तो बहुत जो बच्चे वहाँ पर कॉलेज में आते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं अपने अब टू गेट द बैंग फॉर देयर बक. एंड हमारे यहाँ पर ये वाला एटीट्यूड नहीं देखा गया क्योंकि माँ बाप पे कर देते हैं फ़ीस मोस्टली. तो बच्चों को वो एक तरह से वो एक रियलाइजेशन नहीं होती है कि भाई आई हैव टू मेक यूज़ ऑफ दिस ईच डे एंड ईच आवर दैट इज़ बीइंग गिवन टू मी. तो ये जो एक थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ अप्रोच ऑफ स्टूडेंट्स है वो मुझे वहाँ पर एटलीस्ट उस समय ये दिखा कि भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन्ड और पढ़ने वाले बच्चे थे वहाँ पर. What advice would you give to students who want to do their MBA and Masters in Finance? Now, the entire concept of MBA is kind of changed over the past years. सभी को MBA करना है, सभी को Masters in Finance करना है. तो अब आप क्या advice दो? I think ये generational changes होते हैं, एक phases आते हैं where some degrees become very popular and then something else takes on. तो ये MBA वाला जो ये concept है ये मुझे लगता है कि ये peak out शायद कुछ समय पहले हो गया है. और अब जो undergraduate programs हैं business में like the one you went to, मुझे लगता है कि बहुत कुछ जो हमने MBA में सीखा वो आपने bachelor's level पे ही सीख लिया. तो MBA is more of a tag than the degree itself. But ऐसा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में शायद इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है कि वो नेम टैग अभी भी काफ़ी चलता है. आई मीन इफ़ यू गेट इनटू अ ग्रेट MBA स्कूल दैट नेटवर्क एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो कि वो नेटवर्क इफेक्ट जो है कि भाई आप एक पर्टिकुलर कॉलेज के हैं और आपका एक नेटवर्क है, दैट हेल्प्स यू इन योर करियर लाइक आई एम सीइंग विद लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु वेंट टू IIM एंड ऑल दैट. तो एक वो नेटवर्क इफेक्ट है, एक थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट होता है, ब्रिलियंस एक दूसरे पे. तो ज़रूरी है कि आप किसी स्टेज लाइफ में अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं खास करके तो आप 2-4-5 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप ये कोर्स करें तो आप भी उस कोर्स में से बहुत कुछ डिराइव कर पाएंगे. द मिस्टेक आई मेड वाज कि मैंने MBA विदाउट एक्सपीरियंस कर लिया. और क्योंकि जो जितने भी और मेरे कोलीग्स थे, क्लासमेट्स थे मोस्टली अमेरिकन, वो सब काम करके आए थे 4-5 साल 6 साल 8 साल. तो वो अपनी वर्क एक्सपीरियंस को उससे कोरिलेट कर पाते थे. जब वो कोई कोर्स हुआ ह्यूमन रिसोर्सेज का, कोई कोर्स हुआ ऑपरेशनल रिसर्च का, कोई कोर्स हुआ मार्केटिंग एफर्ट्स का, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ कोरिलेट कर पाते थे कि हाँ मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा है और अब ये इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं. और मेरे पास वो एक्सपीरियंस था नहीं उस समय के लिए. तो आई थिंक ऑल दीज कोर्सेज आर वेरी वेल डन वंस यू हैव core experience of yourself. But what do you think? How many masters is enough? You did 3. I've done 0. So what's the ideal number for you? I don't think there is anything like that. तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिग्री या वो करने से कुछ ऐसी अचीवमेंट हो जाती है कि मतलब आप कुछ नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हो. एक सेल्फ अचीवमेंट और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात है. आप पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर आप जितने मर्ज़ी आप डिग्रीज़ आगे लीजिए, कोई इशू ही नहीं है. बट आई डोंट थिंक उससे इतना कोई फ़र्क पड़ता है कि आप कितने एक मास्टर्स करी हुई है या आपने PhD करी हुई है. बट हाँ, एक आपको लाइफ लॉन्ग एक थोड़ा सा एक अपने ऊपर प्राउड फीलिंग होती है कि हाँ मैंने ये अचीव किया था अपनी पढ़ाई में. तो दैट इज़ समथिंग दैट स्टेज ऑन विद यू फॉर लाइफ. बट आई डोंट थिंक फ्रॉम एकेडमिक नॉलेज परस्पेक्टिव डिग्री इज़ एसेंशियल. आजकल तो इतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अवेलेबल है. आप हार्वर्ड का कोर्स बैठ के अपने कंप्यूटर पे कर लीजिए फ्री एंड यू विल गेट ऑल द नॉलेज. So once you completed your masters, you graduated, what were the opportunities that came to you and what caught your eye? Did you want to stay in the US after that? तो मैंने वहाँ भी 2-3 कंपनीज में अप्लाई किया था. एक कंसल्टिंग कंपनीज 1-2 होती थी EDC के नाम से, और एक दो और कैपजेमिनी, उनमें मुझे कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटी थी. फिर मैंने US एयरलाइंस के साथ भी थोड़ा काम किया समर में.
और मैंने यहाँ मैकेंजी इंडिया में अप्लाई किया था फिर, तो मेरे 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू अच्छे हो गए थे उसके अंदर, एंड देन द NSC अपॉर्चुनिटी केम अलोंग। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप अगर अच्छी तरह से कुछ थोड़ा बहुत कहीं अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं या अच्छी आपकी थोड़ी प्रिपरेशन है, तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ का इतना इशू नहीं है आज की डेट में भी। आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, पीपल नीड टू अप्लाई देमसेल्व्स। Thank you so much for tuning in to this episode of Road to Financial Freedom. We'll catch you back again next week, same time. मेरा ये मानना है कि सबके एक्सपीरियंस को जब आप सुनते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी के एक्सपीरियंस से आपको कोई अच्छी बात आपको अपनी लाइफ में अगर आप डाल सकते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ द टेक अवे और की टेक अवे फ्रॉम एनी ऑफ दीज कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू सो मच।